السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اصل میں طرح سے ٹیڑھ ہو کے تو پڑتا ہے ہلنے لے لوگ آگے با پیچھے انہیں کرسی ہوئی طرح خالی وہ سیاتا جون تانی کے سامنے ہم آیت پڑھنی ہے۔ وہ آیت 18واں پارہ سورہ نور کے ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کے اللہ تعالیٰ ان کرا واسطے سے ہمنی کے کہویلے والا آجون حدیث پڑھنی ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ دنیا سے گئل بڑا کہ نبی فرماؤ ترن اذا صلت المرأة خمسها کہ مہرارو لوگ، عورت لوگ جب 5 وقت کے نماز پڑھی، وصامت شہرہا اور مہینہ یعنی رمضان کے روزہ رکھی، اکرا آگے قدرن اللہ کے نبی وَأَطَاعَتْ بَالَهَا اور یہ اپنا شوہر کے کوچی کری، تابعداری کری، فرما برداری کری، اوکر بات مانی، وحافظت فرجہا اور اپنا شرمگاہ کے حفاظت کری، تو اوکرا خطرہ خوشخبری ای با کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اوکرا سے کہل جائی کہ جنت کے 8 وہ دروازہ با تارا جاؤنا سے مون کرے اوکرا سے تو جنت میں چل جا۔ اب بتاو دنیا میں ہم آئی بنی سو چاہے کیوں ہو کے اگر ایمان کے دولت ہمنی کے مل جاتا تو سب سے پہلے ہمنی سورگ کے بارے میں سوچے لیسن کہ میں جائی نرک سے بچل جاؤ، جنت میں جائی دوزخ سے بچ جاؤ، اس سب سے بڑھ کا کامیابی کا انسان خطرہ۔ اب وہ جاکوا 5 گو جب 8 گو دروازہ با اجونی 4 گو کام کرے کے بعد قیلہ کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں کے جو گھر کے مائی بہن بیٹی مہرارو باٹے اوکرا سے کوئین کی طرح جونا سے من کرے اوکرا سے تو جنت میں چل جا۔ اب ہمیں اتنا لوگ بیٹھل با ایمانداری سے بتائیے ہوگی کہ اے میرا اگر حکومت کے طرف سے اعلان ہو جائے کہ جے لوگ 10واں پڑھ لے با، جون عورت لوگ 10واں پڑھ لے با اوکر آنگن باڑی میں نوکری ہوتا بھی نہیں انٹرویو کے کونو انٹرویو نہیں کھے اوکر اگر 10واں کے سرٹیفیکٹ باٹے تو اوکر نوکری ہو جائے۔ سیلری کتنا بات 30,000 سے شروع ہوئی۔ صحیح بتائیے لیکن ہمیں کے بعد چپ چپ جا کے اپنے گھر میں سوچ جائے کیوں سوتے والا نہیں کھے۔ دور سب سے پہلے کا کام تو یہ کری کہ اگر مہرارو کے بارے میں نہیں پتا کہ کتنا پڑھ لے بیا، اے کہاں لے پڑھ لے بڑی ہو وہ کہتا رہی 8واں لے صحیح کہتا رہی 10واں نہیں کو کہی لے۔ ارے اگر حکومت نیتیش کمار کے بعد اعلان کر لے بڑا الیکشن آوے علاوہ 2025 میں اوکرا سے پہلے آنگن باڑی میں بھرتی ہوکے والا با جے بھی 10واں پڑھ لے با اوکر نوکری ہو جائے۔ صحیح کہ نہیں کو پڑھ لے نہ ہو لیکن پڑھ لے صحیح کہتا ہے۔ 50 بار کھودیا پوچھ رہا ہے مردوں سے کہے لا تاکہ وہ کہہ دے کہ ہاں 10واں کے سرٹیفکیٹ بھائی کر نوکری لگ جا۔ اگر بھائی کی نہیں کے پڑھ لے اب چلو اوکرا بعد میں جے گاؤں کے ہیڈ ماسٹر کے 10واں کے اسکول میں پڑھاوت ہو کے اوکرا لگے چلو اب پہنچ گئے نہیں اوکرا لگے مار صاحب تنی وہ کام رلو کون کام بابولا بابوا اے ہمارے وہ کام رلو تنی کرا نہ دی کون کام رلو اے تو کرا دو بنو اے تو بولا تو صحیح کون کام رلو تنی ہمارا موگی 8ویں لے پڑھ لے بھی اوکر 10واں کے سرٹیفکیٹ چاہیے اور نوکری کے آفر نکلل با اب باٹی یہی سال نوکری ہوکے والا اگر تو ہمارے کے سرٹیفکیٹ دیوا دے بنو تو اوکر نوکری لگ جائے۔ ماٹ صاحب کہت رہے نا اتنا آسان با کا یہی طرح سرٹیفکیٹ مل جلا تو دھیرے سے اب آواز دھیرے ہو گئی اب بولا نا کون خرچہ پانی ہوئی دیائی کتنا لگا تو وہ دیائی۔ ماٹ صاحب کہت رہے دھیرے سے دیکھا یہ سب بات حلہ گلی نہ کہیں جلا رات میں ہوئی دھیرے سے بتی آواز نہیں
और ओमे ऑनलाइन पैसा ना लियाला, ओमे खाली पैसे लियाला, लिखा पढ़ी ना होला, ओमे डायरेक्ट यही तरह रहेला, भरोसे के ऊपर काम होला। कम से कम 7 लाख रुपया देबो तो तारा काम दे देवे से के तार नौकरी होके वाला बा। बबुआ के लगे रोला 2 कट्ठा खेत बेच देलन, ओमे से 1 कट्ठा काहे खतरा कि ऐसे कि हमरा मेहरारू के नौकरी लेवे के बा। अब सही सही बताओ लोगे कि हुकूमत जौन बाटे आज ऐलान कइले बा, हुकूमत के तरफ से आज पर्चा निकलल बा कि नौकरी होके वाला बा, ई कैंसिल हो सकता कि नहीं के हो सकता, हो सकता कि नहीं के हो सकता। अरे मान लो जीते से पहले ऐलान बा, जीत गईला के बाद में कौन पूछवाई जावा भाई, वोट लेवे खतरा ऐलान रलो, वोट मिल गई, जीत गई, नहीं बात खत्म हो गई, तू कहां के हम कहां के, हुकूमत में हम बारी तुम्हारा पीछे पीछे घूमत रहो। कितना लोग आज ले टीटी और एसटीटी निकाल करके बीएड और डीएलएड करके कितना केस लड़त रहो, कितना मुकदमा लड़त रहो, नौकरी तो मिलते नहीं थे, तो तारा फ्री में मिले कहां से जाता। मालूम ही भाई कि जौन हुकूमत वोट खतरा एक तरह के लालच देले रहो, हुकूमत अपना बात से पलट सकता, प्रधानमंत्री होके चाहे केहू होके अपना बात से फिर सकता। लेकिन याद रखिए लेकिन दुनिया के अंदर एगो आदमी ऐसा आइल बा, आज तक दुनिया के अंदर ऐसा आदमी एगो पैदा भइल बा जौना के नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहल जला, आसमान अपना जगह से फाट सकता, जमीन अपना जगह से हट सकता, पहाड़ अपना जगह से हिल सकता, लेकिन नबी के बात हेतु झूठ नहीं के हो सकत। जब वो कहले बाड़ा कि अगर एक औरत 4 गो काम करके आई, अल्लाह ओकरा के 8 दरवाजे में से जौना से चाही वो जन्नत में भेजियन, तो अल्लाह भेजियन, उनकर बात कहीं को गलत नहीं हो सकत। तो हमनी के वो बात पर भरोसा नहीं थे, लेकिन सरकार के बात पर भरोसा हो जाता। हमनी के वो बात पर भरोसा नहीं के रिश्वत देवे खतरा इंसान तैयार हो जाता। हमार मेहरारू नमाज पढ़ती है कि ना, अल्लाह के नबी सबसे पहले का काम कौन बतैलन, इदा सल्लतिल मरातु खमसा, हमें जितना औरत लोग आकर के बैठल बा तनी ईमानदारी से सोचो, तनी सा बताओ कि 5 वक्त के नमाज पढ़ता कि ना। 5 वक्त के नमाज के तो गोली मारा, ओकरा नमाज पढ़े के ढंग भी नहीं के, वो जानते नहीं कि नमाज होला कौन, फजर के वक्त कब होला, जोहर के वक्त कब होला, असर के कब होला, मगरिब के कब होला, ऐशा के कब होला, मगरिब में कोरे का होला, असर में कोरे का होला, फजर में कोरे का होला, फर्ज कितना बा, सुन्नत कितना बा, कुछ नहीं के जानत। और गार्जियन भी खुश बा, अल्हम्दुलिल्लाह हमार छौड़ी मैट्रिक कर ले बिया, इंटर कर ले बिया, बीए में नाम लिखवा देले बानी, फटाफट अंग्रेजी बोलतिया, अरे नमाजो पढ़े ले का मौलवी साहब, तू ये सब पूछी आइल बड़ा बड़ा नमाज पढ़े ले, कलमा जाने ले, अंग्रेजी में बोले ले, मैथ बना ले, साइंस पढ़ ले दिया, फिजिक्स जाना किया, अब कलमा दुआ दरूद नहीं कोनो चीज हवे। अरे जिंदगी बात सीख ली, कोनो बात नहीं के, ओ खतरा जिंदगी बा, एक खतरा जिंदगी नहीं के। लड़का 3 साल के भई एकदम फर्स्ट क्लास टाई साई लगा करके जीप में बैठा देनी, बस में बैठा देनी, लड़कुआ जात कहाँ बा, स्कूल में चल गई, आ गई वहां से अंग्रेजी पढ़ के, लड़कियां गई कहाँ, गई स्कूल में, आ गई अंग्रेजी पढ़ के। ओकरा से तनी पूछो, चाहे हिंदू धर्म के मानने वाला हो, चाहे मुसलमान धर्म के धार्मिक चीज कुछ जाने लू, गीता के कोनो श्लोक सुना सकता रू, कुरान के कोनो आयत पढ़ सकता रू ना, ऐसे कोनो फिक्रे नहीं के। मजहबी बात सिखावे के कोनो ध्यान नहीं के, दीन के बात सिखावे के, धर्म के बात सिखावे के केहू के कोनो तवज्जो नहीं के। हाँ लड़कियां पढ़ लीनू तो नौकरी हो जाए, लड़कियां पढ़ लीनू तो बड़का कमाए वाली हो जाए, लड़कियां पढ़ लीनू तो आगे बढ़ जाए। एगो बात याद रखिए लोग कि हमें मर्दाना लोग भी बैठल बा, हमें मेहरारू लोग भी बैठल बा, हमारे बड़ा ड्यूटी मिलल बा मेहरारू लोग के ऊपर बात करे के। मर्दाना के पैदा करे के मकसद का बा और मेहरारू के पैदा करे के मकसद का बा, दोनों के पैदा करे के मकसद अलग अलग बा, दोनों के गर्ज अलग अलग बा। मर्दाना पैदा कइल गइल बा सियासत करे खतरा, मर्दाना पैदा कइल गइल बा हुकूमत करे खतरा, मर्दाना पैदा कइल गइल बा बाहर कमाए खतरा, मर्दाना पैदा कइल गइल बा खेती गृहस्थी करे खतरा। मेहरारू पैदा कइल गइल बा लो, औरत कल पैदा कइल गइल बा लो घर के बिस्तर बने खतरा, औरत पैदा कइल गइल बा लो घर के लइकन के देखभाल करे खतरा, औरत पैदा कइल गइल बा लो घर के अंदर रहे खतरा। न ये के घर से बाहर निकल के दूसरा के सामने जाके अपन इज्जत दिखावे खतरा, अपन हुस्न दिखावे खतरा, अपन लिबास दिखावे खतरा। औरत के खतरा पैदा नहीं की करी गई, लेकिन आज दुनिया हमनी के एक तरह चढ़ा देले बा, एक तरह बता देले बा। लोग कहता आजी मौलवी साहब आप किस जमाने में जिंदगी गुजारो तरह, आवा हमरा लगे, हमरा से पूछो, हम बताओ तनी तारा से, हमार जिस्म हमार मर्जी,
नारा चल रहा याद बाकी नहीं खे, हमार जिसम हमार मर्जी। अल्लाह कहत रहन इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अगर तू सही के जाना तरह अल्लाह के माना तरह, अल्लाह तारा जान के भी अल्लाह तारा माल के भी खरीद ले वालन, ये बदले की तरह का वो जन्नत दियन दे तार हइला ना तो मेरा जिसम मेरी मर्जी हुआ कहां से। और जिसने भी ये नारा दिया मेरा जिसम मेरी मर्जी, मैं सच कर रहा हूं, मैं ऐलान कर रहा हूं कि वो कम बखत सिर्फ और सिर्फ हमारी माँ और बहनों के जिस्म को देखने के लिए नारा दिया है। औरत काहे के लिए बनी थी? औरत के माना कौची हवे? औरत के माना पर्दा। सुन ले बड़ा लोग, सत्रह औरत जन फराइज नमाज बतावल जला, वो में बतावल जला 17 औरत का छुपाना। का मतलब भइल कि औरत नाम ही पर्दा के, औरत घर में रहे वाली चीज है। औरत के शहजादी बन के, रानी बन के, महारानी बन के घर में रहे के चाहिए। लेकिन औरत लोग के बात समझ में आई ना, औरत लोग के उन नौकरानी बनावे के चक्कर में घर से बाहर निकाल देना। औरत लोग खुश बा कि हमने कमाता नहीं सब। अरे कमात थोड़े बानी सब। ई बताओ कि तारा घरे 2 बैल होके चाहे 2 गाय होके, तू अपना घरे 2 बैल रखले बड़ा, एगो बैला के नाद पर बांध के खूब खियावत रह, सुबह शाम ओकरा के बरान पका पका खियावत रह, एकदम लेदी में तू कोराई मिला मिला खियावत रह, छिट छिट के बरान खियावत रह। एगो के खूब हर में जोतत रह ले जाके खेत में। तब जन हरवा में जोता था उ कहे हम बड़ी मेहनत करेली, हम तो बाहर जाता नहीं, तो ओकर बेवकूफी नु बा। ओकरा से जोतवावल जाता, ओकरा से मेहनत करवावल जाता, मजा में तो ओकरा बदन चुपचाप नाद पर खड़ियाइल बा, आराम से खाता एकदम भैंसा भइल बा। तो मजा तो ओकरा भइल। औरत तो मजा वो मेरा बाटे कि अपना घर में बैठल रहे चार दीवारी के अंदर, कोनो दोसर मर्द ओकरा के देखे ना, वो दूसरा के देखे ना, और चुपचाप महारानी बन के हुकूमत करे घर के अंदर, खाना बनाए, लड़कन के खियाए, लड़कन के पोसे, लड़कन के पाले, लड़कन के कपड़ा देखे, देख रेख करे, अपना घर के अंदर रहे। लेकिन मर्दाना कहता मोटरसाइकिल पर बैठ चलो तरह के स्कूल छोड़ दी, ले गई मर्दाना औरत के छोड़ दिल स्कूल, अपने निकल गई ताश खेले। एहू तरह होता, अपने जाता ताश खेले, मेहरारू जाता रही स्कूल में पढ़ावे। जब महीना के सैलरी आवता तो कहता तब हमरो अकाउंट में फोन पे से भेजो ना, भेजवैला सुंदरा से, कमवैला सुंदरा से, खटवैला सुंदरा से, मजा मारा था यहाँ। और लोग कहता हमारे छौड़ी बड़ी आगे बढ़ल भी, अब नौकरी करतिया। अरे नौकरी का करतिया, ये नहीं का देखत कि अब झेलत कहाँ बिया। मसला यह बा कि अगर 5 वक्त के नमाज पढ़े के सिखैले रहती, दीन के बात बतैले रहती, शरीयत के बात बतैले रहती, तो ये दिमाग में बात घुसर रही कि एगो औरत खतिरा घर के अंदर रहल सबसे बेहतर बा। नमाज इतना अहम चीज बा। शरीयत कोची कहता, शरीयत बतावत कि अगर औरत कोनो नमाज पढ़े के चाहत रही तो वो अपना आंगना में मत पढ़स। यो ध्यान से सुनिए लोगी, बरामदा में मत पढ़स, आंगना में मत पढ़स। जौन घर के सबसे आखिरी वाला हिस्सा होके कोना में जाके नमाज पढ़े के बाद, अपना आप के छुपा के नमाज पढ़े के बाद। मर्दाना लोग रुकू करेला, पूरा झुक जाला। शरीयत कहता औरत लोग के ना उतना झुके के नहीं के कि बेपर्दगी ना होके, थोड़ा सा झुके के बाद, खाली ठेवना पर हाथ चल जाए, इतने झुके के बाद। मर्दाना लोग सजदा करे जाता, शरीयत कहता सजदा ए तरह करे के बाद कि पेट के अंदर से अगर बकरी के छोटे बच्चा होके तो निकल जाए, हाथ उठल रहे के चाहिए, सही पेट जोन बाटे जांग से अलग रहे के चाहिए, ए तरह मर्दाना लोग के सजदा करे के बाद। लेकिन नमाज के अंदर भी देखो, एगो औरत नमाज पढ़ती है तो शरीयत कहता कि ना ए तरह नहीं के पढ़े के, ओकर जांग ओकर पेट एक में सट जाए के चाहिए, ओकर हाथ जमीन में जाकर के सट जाए के चाहिए, बिल्कुल पर्दा में रहे, ताकि अगर कोनो गैर मर्द ओकरा ऊपर नजर डाल देवे तो बेपर्दगी ना होके। अब बताओ नमाज इतना अहम चीज बा, जाना के पढ़े खतरा शरीयत कहता पर्दा में पढ़े के बा, लेकिन हमने कमवावे खतरा बेपर्दा ले जाकर के स्कूल में छोड़ देता। एगो स्कूल में कोगो टीचर, 8 गो टीचर, कोगो मर्द कोगो मेहरारू, 5 गो मेहरारू 3 गो मर्द। उ मर्द कहाँ के? उनकर मर्द है जेकर नौकरी करता रही। बहुत कम ऐसा होला कि मर्दे मेहरारू के एगो स्कूल में होके। दोसर मर्द दोसर मेहरारू, साथ में हाथ में चिप्स खरीदा जाता, हाथ में बोतल ठंडा के लिया जाता, एक गिलास वो पियो तरन, एक गिलास ये पियो तरी। इनकर घर कहाँ उनकर घर कहाँ कोनो था पता नहीं खे, लेकिन नौकरी साथे कर तर लो तो जाहिर सी बात बा कि मेल मोहब्बत में पियल जाता। तारा खतरा जायज बा का?
शरीयत इजाजत देले बा दूसरा मर्द के साथे तू हाथ में हाथ लगा के चिप्स खा और ओकरा बाद में गिलास बांट के ठंडा पियो। का हमनी के गैरत इतने बाटे, चाहे वो हिंदू भाई होके चाहे मुसलमान भाई होके, कि हम अपना बेटी की, अपना बहन की, अपना मेहरारू के ले जा करके कम वक्त दूसरा के मर्द के सामने, दूसरा मर्द के सामने बैठा देता नहीं, और ओकरा बाद में वो ओकरा से ठट्ठा करता, हंसता, बतियावता, क्लास में जाता, रूम में जाता, ऑफिस में बैठता, एक साथ बैठ के करता। काके आखिर हम का सोचते नहीं सब? अगर हमने के भगवान दिले बड़न ताकत, हमने के पैर में ताकत बा, हाथ में कुवत बा, खुद से कमाई जाओ, खुद से आगे बढ़े जाओ, हमने पढ़े जाओ, हमने लेकर के पढ़ावा जाओ, नौकरी करावा जाओ। लोग कहता दोनों के एक बराबर पढ़ावे के चाहिए। बात तो सही बा, पढ़ावे के तो चाहिए, लेकिन उनमें बेपर्दगी ना होके के चाहिए। कोनो शरीयत ऐसा बा, कोनो धर्म ऐसा बा, हमें हमारे हिंदू भाई लोग बतानी, अपना पंडित जी से पूछ के बताई लो कि का कोनो किताब में, चाहे रामायण में होके, गीता में होके, यजुर्वेद में होके, ऋग्वेद में होके, कोनो में लिखल बा का कि हिंदू धर्म के औरत बेपर्दा रही है, मुसलमान धर्म के औरत बेपर्दा में रही है, कुरान में लिखल बा का? कहीं नहीं के लिखल। केहू सही आदमी पसंद नहीं के कर सकत कि हमारे घर के औरत बेपर्दा जाओ। कोनो सही आदमी नहीं पसंद कर सकत कि हमारा औरत के ऊपर दूसरा आदमी नजर उठावे। क्यों पसंद कर सकता? कबो नहीं कर सकता। अगर दिल के अंदर सही वाला दिल बाटे, अगर सही जज्बा बा, दिमाग अगर सही बा, तो कबो पसंद नहीं कर सकता। तो ये वजह से सबसे पहले का काम कि नमाज 5 वक्त के पढ़े के बाद, इदा सल्लतिल मरातु खमसाहा। अब 5 वक्त के नमाज पढ़ी लो कब? जब सीखले रही लो तब। सीखी लो कब? जब पढ़ले रही लो तब। तो मालूम ही भाई कि जहां तू दूसरा के धर्म के, दूसरा के बात के सुनता रह, वही रकबा कोशिश करे के बाद कि हम अपना घर के लड़का लड़की, बच्चा बच्ची सबके हम धार्मिक चीज जो बांटे, चाहे दूसर का चीज। अल्लाह के नबी कहत रहन वो सामत शह रहा कि और रमजान के रोजा रखेगी। रमजान के रोजा हर औरत, अगर वो औरत जो है बालिग हो चुकी है, रमजान का रोजा रखती है, अपने अय्यामे बीमारी को छोड़ करके, हर औरत का है वो हर एक के साथ है, वो हो जाता है उसको छोड़ दीजिए, वो बाद में उसकी कज़ा करना वो करती है। लेकिन अगर रमजान का रोजा रखती है, कोई बहाना नहीं बनाती है, ये नहीं कहती है कि ना अब तो हम बुझा तो दुबरा जाए, ना हमारे लड़का बाटे ओकरा वजह से हम ना रखें, ना हम लड़का के दूध पियावनी है वजह से रोजा ना रखें। अगर डॉक्टर कह रहा है कि आप रोजा रखिएगा, 12 घंटा 14 घंटा भूखा रहिएगा, तो आपके दूध में गड़बड़ी हो सकती है, बच्चा जो है आपका नुकसान हो सकता है, तो ठीक है आप उज्र के बिना पर कज़ा कर सकती हैं, उसको बाद में रख सकती हैं। लेकिन कोई उज्र नहीं है, सही है आदमी, तो फिर उस टाइम में औरत को रोजा रखना है। वो सामत शह रहा। उसके बाद जो है तीसरे नंबर पर जो है वह हाफिजत फरजहा, और अपने शर्मगाह की हिफाजत करना। शर्मगाह की हिफाजत करने से क्या मुराद है कि हर औरत की ये जिम्मेदारी बनती है कि आपन इज्जत बचा करके रखे, आपन इज्जत बचा करके रखे। अल्लाह के नबी फरमाओ कि अगर तुम लोग 2 चीज की गारंटी दे दो, 2 चीज की गारंटी दे दो, तो मैं तुम्हारे लिए जन्नत की गारंटी देता हूँ। 2 चीज क्या है कि एक वो चीज जो दोनों जबड़ा के बीच में बाटे यानी कि जुबान, और एक वो चीज जो दोनों जांग के बीच में बाटे यानी कि शर्मगाह। अगर इन दोनों के तू गारंटी ले लेता रहो और गारंटी दे देता रहो कि हम एकरा के गलत इस्तेमाल ना करें, हम एकरा से गलत काम ना करें, हम गलत बात ना करें, तो अल्लाह के नबी कहत रहन कि हम जन्नत के गारंटी देतनी कि तू जन्नत में जइबू, तू जन्नत में जइबो। अगर मर्दन्ना बड़ा तो औरत बाड़ू तो दोनों खतरा अल्लाह के नबी कहत रहन। आज जुबान जो है, हम जुबान ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं, हमको पता भी नहीं है कि हम किसके बारे में क्या बोल दे रहे हैं, खुसूसन हमारी माँ और बहनें, क्योंकि हमारी तवज्जो उधर ही है। 2 चीजें, जुबान का इस्तेमाल और शर्मगाह का इस्तेमाल, इसको हमें जो है सही जगह पर सही वक्त में सही तरीके से करना है, तब जाकर के हमें जन्नत मिलेगी। तो माँ और बहन से पहले का गुजारिश, आपन जुबान के सही इस्तेमाल करे के बाद, सही इस्तेमाल का मतलब का भाई, सही इस्तेमाल का मतलब ही भाई कि अपना जुबान से गीबत नहीं के करे के, चुगली नहीं के करे के, झूठ नहीं के बोले के, गाना शाना नहीं के गावे के, अपना जुबान से अल्लाह के जिक्र करे के बाद, अपना जुबान से कलमा दरूद पढ़े के बाद, अपना जुबान से इस्तिग़फ़ार करे के बाद, अपना जुबान से कुरान की तिलावत करे के बाद,
अगर हम अपना जुबान के अल्लाह के जिक्र में लगैले बानी, अल्लाह की याद करे में लगैले बानी, हम झूठ नहीं बोलत, गिबत नहीं करत, चुगली नहीं करत, माशरा में हम बैठ करके अगर हम ये देखत आनी कि अगर हमार सहेली आ गई, अगर हमार कोनो दोस्त आ गई, तो मालूम ये होता कि 5 मिनट मुलाकात के बजाय 5 घंटा बीत जाता खाली हिंकर शिकायत करे में। कहाँ रहलू तो ससुराल नहीं है, मुश्किल से 2 से 3 मिनट ठीक रहलू तो हाँ ठीक रहनी है, सास ठीक बाली तो ठीक बाली, और ये सब ठीक रहल, हाँ सब ठीक रहल। अरे का बताई जब से गइल बड़ू फलाना हेत्र कोई रही है, हाउ हेत्र कोई रही है, ओकरा बारे में हई, एकरा बारे में हाउ, ओकरा बारे में हई। अब शुरू हो गई मालूम ही भइल कि खाली दूसरा के बुराई, दूसरा के गिबत, दूसरा की चुगली लगा रहल बा आदमी, चल रहल बा, लेकिन ये नहीं के सोचत कि गुनाह कर रहल बानी, हम दूसरा के बुराई कर रहल बानी तो हम अपना नामे अमाल में बुराई जमा कर रहल बानी, गुनाह जमा कर रहल बानी, जौना वजह से हमनी के कल क़यामत के दिन परेशानी उठाओ के पड़ी, हमनी के जहन्नम में जाए के पड़ी। ये वजह से हम अपना माई बहन से कहें कि अपन जुबान के कंट्रोल करे के बाद, क्योंकि गीबत नहीं के करे के, चुगली नहीं के करे के, क्यों से झूठ नहीं के बोले के, जौन भी बात करे के बाद सही बात करे के बाद। दूसर का चीज जो एकरा अंदर रहला, जो अल्लाह के नबी कहले बड़न, चाहे वो मर्द लोग होके चाहे वो औरत लोग होके, अपने शर्मगाह की हिफाजत करना, शर्मगाह की हिफाजत। अब उसके अंदर जो है ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ वही मुराद है, हमारी इज्जत मुराद है, हमारा पर्दा मुराद है, हम पर्दे के अंदर रहें, हम अपनी इज्जत को छुपा करके रखें। आज मुआशरे के अंदर हमारा माहौल इतना गंदा होते जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वबिल वालिदैनि इहसाना, मैं अपनी बहनों से कहूँगा, अपने नौजवान भाइयों से कहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का मामला करो। अल्लाह तबारक व तआला के नबी फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर जो माँ बाप का हक है वो किसी और का हक नहीं हो सकता है। माँ बाप अगर राजी हैं तो फिर अल्लाह भी राजी होगा, माँ बाप नाराज हैं तो अल्लाह भी नाराज होगा। यह हमारी ख्वाहिशात, यह हमारी नफसानी शहवात जो भड़कती है, जिसके बिना पर हम गलत कदम उठाते हैं, माँ और बाप के फिक्र नहीं करते। आप जरा सोचिएगा, आप गौर कीजिएगा, चाहे हमारे नौजवान हो, चाहे हमारी माँ और बहनें हो, चाहे जो भी हो, अल्लाह के नबी ने कहा शर्मगाह की हिफाजत करनी है। उस शर्मगाह को बेजा इस्तेमाल के लिए हम दूसरे के चक्कर में आने के बाद, दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार होने के बाद हमें माँ और बाप की मोहब्बत याद नहीं आती है। हमें इस बात की फिक्र नहीं होती है कि वो माँ जिसने हमें 9 माह अपने पेट में रखा, उस माँ से चला नहीं जाता था, सीढ़ियों पे चढ़ा नहीं जाता था, बाजार में जाया नहीं जाता था, वो सही से रात में सो नहीं पाती थी, करवटें बदल बदल करके रात में सोती थी। उस माँ ने 9 माह अपने पेट में पाला और फिर उसके बाद जन्ने के वक्त अल्लाह फरमाता है वो वज़ातहु कुरहा, कि इतनी ज्यादा तकलीफ होती है, कि इतनी ज्यादा तकलीफ होती है कि इंसान अगर जान दे दे उससे ज्यादा तकलीफ नहीं हो सकती है, लेकिन वो माँ बर्दाश्त करती है, बच्चे की मोहब्बत में बर्दाश्त करती है कि ये बच्चा पैदा होगा, चाहे वो बच्चा हो या बच्ची हो, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये बच्चा बड़ा होगा, हमारा हाथ बटाएगा, ये बच्ची बड़ी होगी, हमारा साथ देगी। वो माँ तकलीफ बर्दाश्त करती है, अपने सीने से लगाती है, उसे दूध पिलाती है, अपने गर्म बिस्तर नहीं देखती, अपने ठंडे पे सोती है, बच्चे को गर्म में सुलाती है, बच्चा पेशाब कर दे उसी रात में माँ अपने आंचल को बिछा देती है, बच्चे को उस पे सुलाती है, अपने जाकर के पेशाब में सो जाती है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो रहा है, वही बच्ची जब बड़ी हो रही है, उस माँ और बाप की मोहब्बत को ठुकरा करके नतीजा ये निकलता है कि 8वें क्लास में जाकर के कोचिंग में दाखिल होता है, कम वक्त 12वें में जाकर के भाग जाता है। सिर्फ ये कहता है कि उसने हमसे ये कहा है कि मैं जिंदगी भर तेरा साथ दूंगा। लड़की ये कह रही है कि लड़के ने वादा किया है कि मैं तुझे रानी बना करके रखूंगा, एक तकलीफ नहीं होने दूंगा, तुम मेरे साथ चल चलो। लड़की तैयार है, क्यों भाई? मैं उसको 8वें से जानता हूं, 12वें तक पढ़ा हूं उसके साथ, 8वें से जानता हूं, बहुत ईमानदार लड़का है, कभी धोखा नहीं दिया, बहुत नेक है, बहुत साफ दिल है, किसी और लड़की से बात नहीं करता है, किसी और लड़की की तरफ तकता भी नहीं है, सिर्फ मुझसे बात करता है, मुझसे मोहब्बत करता है, वो मुझसे शादी करना चाहता है, इसलिए मैं उसके साथ जा रही हूँ। मेरी माँ और बहनों, जरा सोचना कि जिस माँ ने 9 माह अपने पेट में रखा,
अपने सीने से दूध को पिलाया, और जिस माँ ने अपने आप को सब कुछ मुसीबत में डाल करके उस कमबख्त को जवान किया, बड़ा किया, वो नालायक तो अपनी माँ और बाप का हुआ नहीं तो तुम्हारा 4 साल में कैसे हो सकता है? और नतीजा यही हो रहा है कि साल और 2 साल की जो जवानी और खूबसूरती है, साथ तो अच्छे से बिताते हैं और फिर उसके बाद से शिकायत यही आती है, अबे तू छोड़ करके अपने माँ बाप को ये घर से लाई क्या है, जा लेकर के आ। अब लड़की परेशान है, जाए तो जाए किधर, उधर से घर छोड़ करके आई इसके भरोसे, अब ये कमबख्त उसे ठुकरा रहा, भेज रहा, अब वो दोनों तरफ से गई, जाए तो जाए किधर, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मालूम ये हुआ कि 4 साल की मोहब्बत में पड़ गए, माँ बाप की मोहब्बत को 18 साल की ठुकरा दिया। और लड़का भी सोचता है कि हाँ लड़की जो है ना एकदम नमूना है, अकेले हमारे ही ऊपर मरती है, वो किसी और के ऊपर जा नहीं सकती। लेकिन उस कमबख्त को ये पता नहीं होता है कि लड़की होने के बावजूद जब माँ के दर्द को नहीं समझी तो वो हमारे दर्द को क्या समझेगी। इसलिए ये जो खुराफात है, जो शर्मगाह की हिफाजत है, उसकी हिफाजत जरूरी है, और उसके लिए जरूरी यह है कि हमारे ताल्लुकात सही होने चाहिए, उसके लिए जरूरी यह है कि हमें दूसरे के बहकावे में नहीं आना चाहिए। और चौथी चीज, हमारी माँ और बहनें, मैं बहुत जल्दी आगे जा रहा हूँ, चौथी जो चीज है, अल्लाह के नबी ने फरमाया व अताअत बालहा, और अपने शौहर की फर्मा बरदारी करो। अगर औरत अपना शौहर के फर्मा बरदारी करके दुनिया से जातिया तो कल क़यामत के दिन ओकरा से कहल जाई जन्नत के 8 गो दरवाजा बा, तारा जौना से मन करे वो में तू जन्नत में दाखिल हो जाओ। लेकिन अगर शौहर दुनिया के अंदर नाराज बा, शौहर अगर दुनिया के अंदर खिसियाई बा, अगर हमारा कोनो हरकत से शौहर जौन बाटे हमारा से बिल्कुल अलग बाटे, तो याद रखिए कि कल क़यामत के दिन शौहर की नाराजगी के वजह से अल्लाह तबारक व तआला भी हमनी के ऊपर नजर करम ना फरमाइया। तो ये वजह से शौहर के खुश रखे के बाद, शौहर के बात माने के बाद, लेकिन एक साथे साथे बात तो वो लोग के हो, हम एनहू से कहे के चाहता नहीं कि अगर हमारी ख्वाहिश ये है, अगर हमने ये सोचा था नहीं सन कि मौलवी साहब कहते हैं तकरीर होते बा कि हाँ औरत लोग एकदम शौहर के बात मान के चली, हमनी के कौन, हमनी के तो कुरान सुन ले रही सन, हमनी के तो रामायण गीता में लिखल बाटे कि मर्द जौन बाटे वो हाकिम होला, मर्द जौन बाटे उ तो हाकिम होला, उ तो मालिक होला, जे तेरे मन करे वो तेरे औरत के नचावे, जे तेरे मन करे वो तेरे औरत के साथे करे। तो याद रखिए लोगिन, 5वां पारा में जाके अल्लाह कहले बड़न और रिजालु कव्वामुन अलन निसा, ओकरा से पहले दूसरे पारा में अल्लाह कहले बड़न वलहुन्न मिस्लुल लजी अलैहिन्न बिल मारूफ, जे तेरे तोहनी के हक वो लोग के ऊपर बा, वही तेरे वो लोग के हक तोहनी के ऊपर बा। ऐसा मसला नहीं है कि खाली तोहनी के हुकूमत वही लोग के ऊपर बा, ऐसा मसला नहीं है कि अपने जे तेरे मन करे वही तेरे रहो, मेहरारू तो कहे नहैले नहीं खू, ए बाल नहीं कुछ झरले, क्रीम नहीं को लगैले, ए तू निमन नहीं को लौकत, अपने चाहे जे तेरे मन करे वही तेरे घुसत रहो, निकलत रहो, आवत रहो, जात रहो, ऐसा चीज नहीं है, उसका भी हक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ तार तू मर्दाना हो तो तू चाहे जोग उसे बतियावत रहो, वो मेहरारू है तो क्योंकि खून ना आवे। अब ये मतलब मत समझिए लोग कि तोहनी के लगावे लगे, ये गलत मसला है। मसला उनको बताना सिर्फ ये है कि मर्द लोग अपने आप को मर्दाना समझ के ये समझते हैं कि पड़ोसिया में हेकरो से बतियाला, वो भाभी या ओकरो से बतियाला, और देवर देवराइनी है तो ओकरो से बतियाला, वो छोटानी और जेठानी है सब लोग से तनी बतियाला। का है अब मेहरारू अगर कहीं बतियावे लगा तो कौन हाल हो? सोचो लोगी ना, अपना दिल से बताओ लोगी। अगर तू इतना सोचत रहो कि हमारे मेहरारू सिर्फ हमारा से बतियावे, हमारे मेहरारू सिर्फ हमार रहे, हमारे मेहरारू सिर्फ हमार सुने, हमारे मेहरारू सिर्फ हमारा खतरा सब कुछ करे, आ तू ओकरा के छोड़ के दूसरा खतरा कर तो ओकरा नीमन लगी का? काई शरीयत इजाजत देता का? धर्म ही कहता का कि ना तू एगो रखलऊ रह? हाँ अगर तारा लगे इतना बुत्ता बा, अगर इतना दम बा कि हाँ तू 2 गो ना 3 गो ना 4 गो लियावा ना मस्जिद में ऐलान करके निकाह करो कि हाँ हम दूसरकियों से बियाह करतनी, तीसरकियों से करतनी, चौथकियों से करतनी, और चारू के लियावो, इंसाफ के साथ ओकनी के खर्चा दो, इंसाफ के साथ रखो, बराबर बराबर तकसीम करो, बराबर बराबर मोहब्बत रखो। अगर हिम्मत बा तो करके दिखाओ, हिम्मत ना बाना लोग से दिखावे के बाना, ससुराली बतावे के बाना, मालूम बल की कुटाई लागत होके, लेकिन भीतर ये चलावत नहीं। तो ये मर्दानगी नहीं है, ये मर्दानगी नहीं है। खुले लफ्जों में कहिए तो ये हिजड़ापन है, ये हिजड़ापन है। अगर आप वाकईतन मोछ पे ताव मारने वाले मर्द हैं
اور آپ 2 عورتوں کو رکھ سکتے ہیں, 3 کو رکھ سکتے ہیں, 4 کو رکھ سکتے ہیں. قرآن نے اجازت دیا ہے مثنا و ثلاث و رباع, 2 رکھو, 3 رکھو, 4 رکھو, لیکن علل اعلان رکھو, چھپا چھپی والا نہیں کہ ایک کو اعلان کر دیا اور 3 کو چھپا دیا. ایک کو اعلان کر دیا, دوسرے کو جو کشمیر میں رکھا ہے, ایک کو جو نیپال میں رکھا ہے, ایک کو جو ہماچل پردیش میں رکھا ہے, ایک کو جو بہار میں رکھا ہے. ایسا نہیں چلے گا. رکھنا ہے, اعلان کریے, دعوت کریے, ولیمہ کریے. اگر شادی کریں گے بغیر ڈی جے ناچ گانے کے تو ہم بھی چلیں گے, ولیمہ کھائیں گے. بلائیے, دعوت دیجیے, نکاح پڑھائیں گے, فری میں پڑھائیں گے, 25,000 روپیہ نہیں لیں گے. مسئلہ معلوم بانو, کمار لڑکی کے نکاح پڑھاوے کے فیس معلوم بات ہونے کے. اب یہ بات آگے 1 منٹ میں بتا دیتے نہیں, جتنا مولانا لوگ بیٹھل بانو, اللہ کے فضل با کہ سب کاموا فری میں کر دے لوگ. اگر نہ کریت لوگ نو قاضی کی یہاں لکھ کے دیت لوگ کہ نکاح پڑھائی ہمنی کے چاہیے تو 25,000 دیوے کے پڑی. 25,000 کمار اگر لڑکی ہو کے تو نکاح پڑھائی 25,000. اب بیال مہرارو ہو کے تو اگر نکاح پڑھائی 12,500. اس شریعت میں با. لیکن مولوی صاحب لوگ کے احسان با کہ 500,000 روپے 2,000 میں مان جا لو, پڑھا دے لو. اوپر لوگ کہتے کہ مولوی صاحب پیسہ مانگا رہا, نکاح فریے میں پڑھوا لو, اذان فریے میں دیوا لو, جنازہ فریے میں پڑھوا لو, فاتحہ فریے میں پڑھوا لو, نماز فریے میں پڑھوا لو, سب کام تو فریے میں ہو جاتا. تو مولوی صاحب جائیں کہاں. تو یہ وجہ سے تنی سا اوپر دھیان رکھو لوگی. 15,000 20,000 کے ڈی جے بنا دیتا. مولوی صاحب کے میرا 5,000 نکالے کے میرا گیٹھری لاگتا. کوٹے مولوی صاحب نکاح پڑھائی مانگتا رہتا رہا خطرہ جائز بکا. اور جائز رو لگا ڈی جے بناوال 20,000 کے لیا کر لونڈن کے نچاول جائز رو لگا. مولوی صاحب سے نہ پوچھ لو کہ ہم نچائیں کہ نہ نچائیں. مولوی صاحب سے یہ نہیں پوچھے کہ چاہیے, تو یہ پوچھتے نہیں کہ مولوی صاحب کہہ دلا ہمارا 2,000 روپے چاہیے نکاح پڑھائی. تو لوگ پوچھا دوسرا مولوی صاحب سے ہم آئی رہا ہم مانگت کون 2,000. چلو تو یہ ہمارا موضوع نہ لے, ایک بات آ گئی. اصل جو ہمارا موضوع بیٹھے وہ یہ با کہ وہ اطاعت بالہا, اپنے شوہر کی فرما برداری کرنا. اگر عورت لوگ اپنا شوہر کے فرما برداری کرتا, اگر بات مانتا, اگر اوکر عزت کرتا, اگر اوکر ساتھے حسن سلوک کرتا, اوکر ساتھے خوش اخلاقی سے پیش آوتا, اگر شوہر دنیا کے اندر خوش با, تو یاد رکھیے لیکن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی وہ عورت سے خوش ہو دیں گے. اور اگر شوہر ناراض ہو گئی, شوہر اگر کھسیا گئی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کھسیا جائیں گے. تو اے وجہ سے توہنی سے ہماری گزارش باٹے, توہنی کے سامنے ڈھیر بات اگر ہوکے تو ہو سکتا کہ گڑبڑا جائے کہ کون کون یاد رکھی کون کون یاد نہ رکھی. توہنی کے سامنے ہم 4 گو بات رکھنی ہو. تو یہ تو مان لو عورت کو خطرہ رکھنی ہے, تو مردانہ لوگ سوچو تو یہ ہمنی کی کون ذمہ داری با. کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ, کہ آپ میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم بات یہی عورت لوگ کے بارے میں, اگر ان میں سے کیوں کہ بیٹی ہو کے, کیوں کہ بہن ہوئی, کیوں کہ محتاری, کیوں کہ بیوی, تو وہ لوگ کے ماتحت میں با. اگر وہ لوگ غلط کام کرتا, نماز نہیں کے پڑھتا, روزہ چھوڑتا, اگر بے پردگی سے رہتا, اگر وہ اپنا شوہر کے صحیح سے کام نہیں کرت, تو توہنی سے پوچھل جائی. اے وجہ سے توہنیوں ذمہ دار بڑا لوگیں. گھرے بیٹھنے کے بعد میں ہر آدمی فکر کرے اپنا لڑکی کے دین کے دھرم کے بات سکھاوے کے, سمجھاوے کے, وہ لوگ کے بتاوے کے. ای ضرور کوشش کرے کے بعد کہ اپنا لڑکی کے ساتھے ساتھے اپنا جو اخلاق بٹے وہ سکھا کر کے بھیجے کے بعد. ایسے کہ مولانا صاحب 2 گو بات جو ہمارے سے پہلے بیٹھا رہا مولانا عبد الوحید صاحب, وہ دنوا کوہلے رہن 2 گو بات کہ سمجھ میں نہیں کھے آوت. ایگو بات تو کولن جو ہم کرے کے دوہراو خطرہ میں بتیا کونی ہے کہ میٹھا میٹھا ہب ہب اور کڑوا کڑوا تھو تھو. سن لے بڑا لوگ, میٹھا میٹھا ہب ہب اور کڑوا کڑوا تھو تھو. اپنا بیری پڑھلا تو بہت بجھالا, دوسرا کے بیری تنکیونا سہالا. وہی طرح کا حالت با. اے برا بیاہ ہو جاتا, مولانا صاحب دنوا کوہلا نو کرے کے تنی اپنا زبان میں 1 سے 1.5 منٹ میں اوکرا کے سن لوگین, اللہ کے واسطے اوکرا کے بدل لیے لوگین. ہمارا مائی بہن نے بیٹھل بیٹھے, اے بیرا اگر سعودی سے فون آ جائے بہنوئی کے, تو سالی جون باڑی ایک دم خوش ہو کر کے بتیاوت رہی. اور کرت کونچی باڑی کہ جون کیمرہ ہولا نو کرے اوپر تنی سا آٹا اوٹا لگا دیتا رہی, تنی سا ہاتھ پھیر دیتا رہی. کہاں ہے تو فوٹویا صاف نہیں کھے جات. اب بہنوئیوں نے پوچھا ترہن کہا بھائی فوٹو صاف نہیں کھے آوت, اے لوگتے نہیں کھو میں. ایسے کہ مہرارو سے زیادہ سالی کے دیکھے کے من کہلے با, ایسے کہ شریعت اجازت دلے بانو, جائز بانو. جانکاری با کہ ناجائز با کہ ناجائز با؟ ارے ناجائز با. ہندو دھرم میں بھی ناجائز با اور اسلام دھرم میں بھی ناجائز با. اس سب نہیں کہ ہمیں بڑے بتیا کو ہوتا نہیں.
मेहरारू के छोड़ के साली से बतियावे में बहनोई के बड़ी मन लागता। अब कैमरा तनी सब धुंधला लौकता, ए काहे हो तो ई कोची कहत रही धीरे से, ए गिर गइल ल कैमरावा तनी से खराब हो गइल बा, निमन लौकत नहीं के, कोनो बात नहीं के, हम अबे ऑर्डर कर दे तनी फ्लिपकार्ट से। बैठल सऊदी में ऑर्डर कर देलन साली की एगो बात पर कि कैमरा खराब हो गइल बा, आ गेल मोबाइल घर है। सासुआ में देखत रही कैसन मोबाइल के कइलो स, ना भैया कइलो हन जकवा से, बड़ी निमन लागल। अरे दामाद बड़ा भेजलन मोबाइलवा। हमार छोड़ी एक बेर कलैया नु ओ जकवा से किन के भेज देलन। छौड़ा हमार कोचिंग में पढ़ेला, मत पूछो, फीस जितना होला नु एके बेर भर देलन ओ जकवे से, एको बेर ना सोचलन। बड़ी निमन हमार दामाद बड़न। आ मालूम है कि अपन बेटा अपना सार के 200 रुपया दे देला से सलाम करौनी। अब मालूम हो गई अम्मी के, हाँ सब दे दो नहीं, वो नहीं खतरा मोबाइल बड़ा लेके सब वो नहीं भेज देता, कमाता हो जकवा भेजता हो जकवा, हमरा के भेजते नहीं के। ते एकरे के कहल जाला मीठा मीठा हब ह आ कड़ुआ कड़ुआ थू थू। जब अपन दामाद भेजला तो बड़ी नीमन लागल, और जब बेटवा भेज देला तो बेटवा बिगड़ गई। तो ये वजह से सोच लिए लोग तनी सा ध्यान रख के, हमें जितना लोग बैठल बा हो सकता कि अपना बेटी के बियाह कैलो होखे, हो सकता अपना बहन के विदा कैलो होखे, लेकिन केहू एमे बात तनी ईमानदारी से बता देबो कि अपना ससुरा जाइए तो बेटी खाना में नमक कबो बेसी कर दियो, कबो कम कर दियो, कबो मरचा ढेर डाल दियो, कबो कम डाल दियो। अपना ससुर के या सास के खाना दियो नु, पानी पहले मत दियो, पहले भाते दे दियो, तरकारी 1 घंटा के बाद लिए। क्यों सिखावेला? क्यों ना सिखावेला। सब लोग ये बतिया कहेला बाबू इज्जत के सवाल बा, देखिए हमारी इज्जत ना जाए, हमार पगड़ी ना गिरे। 2-4 गो बात बोली लो ओकरा के सह लियो। माई बहन गौर से सुनिया लोगी, 2-4 गो बात कहे लो ओकरा के सह लियो, जवाब मत दियो। लेकिन मसला ये है कि आपन बेटी खाना ला करके परोस दी, खाना अटक गया और मालूम हुआ पानी दस्तरखान पर नहीं है, अटके हुए मुंह से कर अब लो पानी लेके आओ, अब बबी पानी लेके आओ, तो कोनो बात नहीं है। हाँ बुझा तो बबी भोर पर आ गई, काम ढेर बानू, भोर पर आ गई हुए पतोहिया आई घर है, अब मालूम है कि पानी लिया में देर हो गई, तोर माई बाप ये सिखा के भेजले बता, तोर माई बाप ये सिखा के भेजले बा। अपन बेटी रही है तो काम में भोर पर आ गई, दूसरा के बेटी आई है तो ये सिखा के भेजले बा। अपना बेटिया के मेरी धान निकल जाता खाना में से, अब बाल निकल जाता तो सच कहते नहीं कसम से लोग को हबो ना करेला। धानवा धीरे से निकाल के प्लेटवा के किनारे हतरा लगा देला, बालवा निकाल के बिक देला, चुपचाप गप गप खा लेला, उठ जाला। और जहां पर तोहिया देले दिया खानावा, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, ए का भइल, ए इधर आओ पहले, आई चावल ना दे देलो, फटक के बनैले रहलो, आई धान ए बाबा के से में बाल बांध के नहीं को रहो। तो मसला ये बा तनी से करके जो मोहल्ला खोलो हम तनी से ध्यान देखे कि मीठा मीठा हब कड़वा कड़वा थू थू ना दोनों मिला दो हो जाए तो टेस्ट बराबर हो जाए, तो इंशाल्लाह हमनी के जिंदगी अच्छा हो जाए। अल्लाह ताला हमनी अमल के तौफीक दे।